বিল আনিলেই নহ'ব। আমাৰ মুছলমানসকলৰ মাজত, ভাৰতবৰ্ষত মুছলমানসকলৰ মাজত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পলিটিকেল লিডাৰ আছে, বহুত শিক্ষিত মানুহ আছে। গতিকে সিহঁতে এই মোদী চৰকাৰৰ সংশোধনী বিলটো ভালদৰে চালি জাৰি চাই দেখিলে যে এইটো মুছলমানৰ ভাল ভাল সপক্ষে অনা নাই, মুছলমানৰ যিটো ৱাকাফ বোৰ্ড তাৰ বিপক্ষে আনিছে। हमारे देश के সেইকাৰণে मुख्य ভাৰতবৰ্ষত न्यायाधीश जस्टिस মুছলমানসকলে संजीव মোদী खन्ना চৰকাৰে যিটো जाते ৱাকাফ जाते সংশোধনী বিল আনিছিল एक তাৰ काम तो বিৰুদ্ধে बहुत প্ৰতিবাদ अच्छा কৰিছিল कर আৰু गए, সুপ্ৰিম কোৰ্টত या यूं ইয়াৰ कहें कि বিৰুদ্ধে मोदी सरकार को FIR ৰুজু तगड़ा वाला কৰিছিল। झटका देकर गए। সুপ্ৰিম কোৰ্টত दरअसल दोस्तों, এইটো आप सभी শুনানি को আৰম্ভ पता है হৈছে। कि वक्फ আৰম্ভ संशोधन कानून को হৈ लेकर থাকোঁতেই लगातार मुस्लिम तंजीम, CJI খান্না मुस्लिम ৰিটায়াৰ समुदाय के হ'ব लोग, मुस्लिम হৈছে नेता আৰু CJI विरोध कर খান্নাই रहे थे। ये ৰিটায়াৰ হোৱাৰ कानून আগে আগে এটা मुसलमानों के खिलाफ बता रहे थे মুছলমানসকলৰ और বাবে कह এটা रहे ভাল थे कि इससे খবৰ দি দিছে मुसलमानों का যে এইটো अधिकार আচলতে छीनने का মুছলমানৰ जो पूरा का पूरा সপক্ষে নহয়, कोशिश है वो বিপক্ষেহে भाजपा আনিছে। की तरफ মোদী से इस চৰকাৰে कानून को लाकर किया এতিয়াই गया। এই বিলৰ हालांकि ওপৰত बीजेपी ने কোনো इस হস্তক্ষেপ कानून কৰিব को নোৱাৰিব। लेकर कहा নিজৰ कि ইচ্ছামতে देखिए এই বিল ये कानून जो है পাছ बहुत কৰিব, बेहतरीन কাম है, কৰিব बहुत নোৱাৰিব अच्छा है, মুছলমানৰ बहुत বিপক্ষে। उत्तम আৰু कानून है। এই लेकिन जब বিল सीजीआई ने इस যিটো पर আনিছে हामी भरी সংশোধনী বিল, এই सुनवाई की সংশোধনী तो বিলৰ सुनवाई में बहुत सारे सवाल पूछे और সম্পূৰ্ণকৈ सवाल শুনানি হ'ব पूछने के লাগিব। बाद তাৰপিছতে जो कई ইয়াৰ सारे क्लॉजेस थे এই उन সংশোধনী क्लॉजेस বিলত पर কি उन्होंने আছে रोक সেই लगा সম্পৰ্কে दिया। মোদী फिलहाल तो চৰকাৰে दोस्तों रोक है, কাম राहत কৰিব है। পাৰিব। जो मुस्लिम গতিকে এই समुदाय को যে डर सता সংশোধনী रहा বিল, था कि इस ৱাকাফ कानून के সংশোধনী चलते বিলে जो মুছলমানৰ मुसलमान কাৰণে हैं उनके अंदर बहुत सारा खौफ था, डर CJI बैठ गया খান্নাই था कि এটা कैसे ভাল क्या होगा খবৰ और किस শুনাই तरीके গৈছে। की कार्रवाई গতিকে होगी। लेकिन फिलहाल सीजीआई खन्ना ने মুছলমানৰ बहुत বাবে सारे এইটো এটা चीजों বহুত पर ভাল अंतरिम খবৰ। आदेश दे মুছলমানে दिया और ইমান দিন कहा ধৰি कि जब तक প্ৰতিবাদ কৰি पूरा আহিছে मामला আৰু सुनवाई ৱাকাফ नहीं हो जाता है, जिस সংশোধনী तरीके বিলৰ की चीजें বিৰুদ্ধে प्रतिবাদ কৰি আহিছে আৰু सरकारी वकील के जरिए সুপ্ৰিম कही जा रही কোৰ্টত है कि ইয়াৰ हम अपनी এগেইনষ্টে दलीलें रखेंगे, हम अपनी बातें ইয়াৰ रखेंगे, বিৰুদ্ধে तो उन FIR तमाम चीजों पर কৰিছে। दोस्तों যিটো सीजीआई ने নেকি तो সুপ্ৰিম फिलहाल उस কোৰ্টেও वक्त रोक চিন্তা लगा दिया। কৰিব तो লাগিব ये যে एक এই अच्छी যে बात जो মোদী है চৰকাৰে বিল वो লৈ मुस्लिम আহিছে समुदाय ৱাকাফ के लिए সংশোধনী देखने বিল, এই सुनने को বিলটো मिली। दोस्तों মুছলমানৰ आज কাৰণে सीजीआई কিমান खन्ना লাভজনক रिटायर्ड हो रहे हैं। আৰু भारत के কিমান चीफ जस्टिस সপক্ষে संजीव আছে। खन्ना का कार्यकाल आज CJI समाप्त খান্না हो रहा है। चीफ অৱশেষত जस्टिस के तौर মোদী पर उन्होंने চৰকাৰক कई ऐसे এখন अहम এটা फैसले लिए ঝটকা দি जिनमें सेकुलरिज्म को থৈ संविधान গ'ল। की আৰু मूल CJI भावना খান্নাই কি करार ক'লে, देने से लेकर কি मंदिर শুনাই मस्जिद থৈ पर গ'ল মোদী यथास्थिति চৰকাৰক से আৰু গোটেই संबंधित ভাৰতৰ फैसले सुनाए। মুছলমানসকলক उनके এটা चाचा ভাল খবৰ जस्टिस কি হ'ল HR আপোনালোকে खन्ना इमरजेंसी স্ক্ৰীণত के চাওক। समय দ্য নেশ্যন एडीएम जबलपुर আমাৰ जजमेंट के ৰিপৰ্টাৰ कारण चर्चित में आए थे নেশ্যনৰ दोस्तों। ৰিপৰ্টাৰ और ধুনীয়াকৈ चीफ जस्टिस खन्ना के কৈ रिटायरमेंट দিছে के बाद বুজাই। 14 मई আচলতে को এইটো जस्टिस হিন্দী बीआर ভাষাত गवई আছে, হিন্দীত अगले কৈছে। चीफ जस्टिस দ্য के तौर নেশ্যন पर এইটো এটা नियुक्त হিন্দী होंगे, চেনেল। এই शपथ लेंगे হিন্দীৰ और জৰিয়তে 15 तारीख আপোনালোকে को শুনক আৰু वक्फ संशोधन ভালকৈ कानून বুজি पर লওক। उनकी बेंच के जरिए सुनवाई মুছলমানসকলৰ होगी। কাৰণে CJI 25 খান্না नवंबर এটা ভাল খবৰ 2024 দি को থৈ सुप्रीम গ'ল। कोर्ट চাওক के चीफ স্ক্ৰীণত। जस्टिस संजीव আৰু खन्ना ने লগতে अपने মোৰ अहम फैसले से চেনেলটো নতুন হয়, भारतीय আপোনালোকে संविधान की লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ प्रस्तावना में কৰিব। আৰু सेकुलर और এই যে सोशलिस्ट शब्द CJI जोड़ने খান্নাৰ के যিটো खिलाफ दाखिल মুছলমানৰ কাৰণে याचिका खारिज कर শুনানি दी দি थी। থৈ গ'ল, এই সম্পৰ্কে 1976 में इमरजेंसी के মুছলমানসকলৰ दौरान संविधान মতামত কি संशोधन के কমেণ্টত जरिए লিখিব। আৰু যিসকলে प्रस्तावना में ये নতুনকৈ शब्द আহিছে जोड़े মোৰ गए। চেনেলটো चीफ ছাবস্ক্ৰাইব जस्टिस কৰিব। की अगुवाई মোৰ এইটো वाली बेंच নতুন ने कहा চেনেল, कि যিসকলে संसद চাই আছে को নতুন संविधान और অলপ সহায় प्रस्तावना কৰিব। में संशोधन का চাওক। अधिकार है। सेकुलरिज्म संविधान की मूलभूत विशेषता है। मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष का विचार समानता के अधिकार के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो संवैधानिक ढांचे के पैटर्न को दर्शाने वाले बुनियादी ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। आगे दोस्तों, मंदिर मस्जिद विवाद पर भी संजीव खन्ना के जरिए रोक लगाई गई। नवंबर से लेकर दिसंबर 2024 में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था दोस्तों, जब कुछ अदालतों ने मस्जिदों के सर्वे के आदेश दिए थे, ये दावा करते हुए कि उनके नीचे मंदिर के अवशेष हैं। इस स्थिति में चीफ जस्टिस खन्ना ने हस्तक्षेप करते हुए आदेश दिया कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोई नई याचिका दर्ज न की जाए। निचली अदालत सर्वे आदेश या अन्य प्रभावी अंतरिम आदेश पारित न करे और यथास्थिति बहाल कर दी गई। चीफ जस्टिस खन्ना के कार्यकाल में हाईकोर्ट के 2 जस्टिस के मामले का भी विवाद हुआ। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बीएचपी के कार्यक्रम में जाकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला, और दूसरा जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से कैश बरामदगी का मामला उनके सामने आया। तब भी उन्होंने इन मामले में तत्वरित और निर्णायक कार्रवाई की, जिसमें 5 समितियों का गठन और पारदर्शिता सुनिश्चित किया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी पूरा का पूरा मामला जो है वो अवगत करा दिया, क्योंकि जब उनको जो है जस्टिस वर्मा को जो है कहा गया कि आप अपने पद को छोड़िए, तो उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है राष्ट्रपति के पास भेजकर उनको वहाँ से हटाने की बात कर दी।
दोस्तों, चीफ जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उनका फैसला राधिका अग्रवाल मामले में जीएसटी अधिनियम शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी प्रावधानों के दुरुपयोग एक अहम कदम माना गया। उन्होंने यूपी पुलिस को भी चेतावनी दी कि सिविल केस को क्रिमिनल केस में न तब्दील किया जाए। चीफ जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल विवादों में एफआईआर दर्ज किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका की भरमार हो गई है और ये प्रथा कई न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल उल्लंघनों के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना स्वीकार्य नहीं है। तो जस्टिस खन्ना के कुछ अहम फैसले ये भी है दोस्तों कि उन्होंने ईवीएम की सुनिश्चितता बरकरार रखने के लिए फैसले दिए। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक करार दिए जाने वाली बेंच का भी हिस्सा जस्टिस खन्ना जो हैं वो रहे। भारत के 91 चीफ जस्टिस खन्ना का कार्यकाल करीब 7 महीने का रहा दोस्तों। जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किए गए। 2005 में जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CLSC कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और बहुचर्चित रिटायर्ड जस्टिस HR खन्ना के भतीजे 1976 में AGM जबलपुर जजमेंट में भी अपना अलग मत रखने वाले जस्टिस खन्ना खासे चर्चित में रहे और तो और उस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी को निलंबित किया जा सकता है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने जस्टिस खन्ना से असहमति वाला फैसला दिया था। इस कारण वो खासे चर्चित में रहे थे। उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करके जस्टिस HR खन्ना को तब की सरकार ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया था। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। HR खन्ना ने, जो उनके चाचा थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और न्यायिक हलकों में जस्टिस HR खन्ना का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने 24 अगस्त 2017 को आपातकाल के दौरान 1976 में 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के उस फैसले को भी गलत बताया और हाल फिलहाल में बफ सुनवाई को लेकर आपको पता ही है कि उनके फैसले ने कईयों की जो है पेट में दर्द कर दिए।